Good morning, students. Today we are going to start with the chapter number 5, that is Chotu's house. In this chapter, we will know about different type of houses. We all live in a house. Our house in which our family lives is called home. We feel safe and protected inside our homes. Different type of houses. There are mainly two types of houses: Kacha house, Pakka house. Kacha house. Kacha house is made up of mud, bamboo and straws. These houses generally found in villages. Pakka house. Pakka house is made up of bricks, cement, wood, iron, etc. These houses found mostly in cities. Every house has different rooms for different purposes. These are bedroom, bathroom, dining room, living room, garage and kitchen, etc. Okay. Now let's start chapter number 5, Chotu's house. Chotu came to Mumbai for the first time. छोटू जो है फर्स्ट टाइम मुंबई आया। यहाँ पर आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि छोटू मुंबई आया और मुंबई में आने के बाद छोटू के लिए सब कुछ नया था। उसके पास रहने के लिए घर भी नहीं था। सेकंड पिक्चर में आप देख सकते हैं कि छोटू जो है वो बारिश में भी भीगा। और जब हमें ऐसा लगता है कि हम घर के बाहर सेफ़ नहीं हैं, रास्ते पे हैं, तब हमें फ़ील होता है कि काश हमारे पास भी एक घर होता जो हमें बारिश, गर्मी, ठंडी सबसे बचाता। नेक्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हैं छोटू की जो नज़र है वो एक पाइप पर पड़ी, जिसमें छोटू ने अपना घर बसाने का सोचा। He saw a big sewer pipe. सीवर पाइप क्या होता है? बड़े बड़े पाइप होते हैं जो मिट्टी के नीचे जिन्हें लगाया जाता है हमारे घर में से गंदा पानी निकालने के लिए। वो पाइप का यूज़ जो है छोटू ने अपना घर बनाने के लिए किया। एंड he decided to make the pipe his home. और उसके बाद छोटू ने पाइप के अंदर ही उसने अपनी सोने की जगह बनाई। He made his bedroom inside the pipe and his kitchen just out of the pipe. और पाइप के बाहर उसने अपना ड्रम रखा, जिसके बाहर उसने पीने का पानी रखा। और बाहर ही उसने छोटी सी जगह में उसने खाना बनाना स्टार्ट किया। और पास में ही उसने कपड़े सुखाने के लिए भी एक रस्सी बांध दी। He also kept a drum to keep clean water to drink and tied a rope to dry off his washed clothes. और उसके बाद कुछ दिनों के बाद छोटू ने देखा कि उसी की तरह एक बॉय जो है आया, जिसका नाम था मोनू, और वो भी इधर उधर देख रहा था। छोटू ने सोचा कि मोनू भी मुंबई में नया है तो उसकी भी हेल्प करनी चाहिए, इसीलिए छोटू ने मोनू को अपने साथ रहने के लिए अपने घर में बुला लिया। आफ्टर अ फ्यू मंथ्स वन डे when he saw a boy like him had came to Mumbai and he does not have his home, Chotu invited the boy to stay with him. Now study the pictures carefully and answer the following. First, what did
छोटू think when he looked at the pipe? पाइप को देखने के बाद सबसे पहले छोटू के माइंड में क्या आया? When Chotu looked at the pipe, he thought that pipe would be the safest place to live. Pipe could save him from strong winds, rain and cold. जैसे ही छोटू ने उस पाइप को देखा, छोटू को लगा यही पाइप मेरे लिए सबसे सेफ जगह है रहने के लिए। How did छोटू use the pipe? छोटू ने उस पाइप का यूज़ कैसे किया? छोटू used the pipe as him home. Into which parts did छोटू divided the pipe and its surrounding area? छोटू divided the pipe into sleeping area, cooking area, a part for drying clothes, a part for keeping drinking water and a part where guests can sit. In which part of this house will Chotu like to spend most of his time? छोटू ने इस पाइप के कौन से पार्ट में अपना ज़्यादातर टाइम बिताएगा? आपको क्या लगता है? छोटू would like to spend most of his time in the living room, the part which is meant for the guest. उसका लिविंग रूम कौन सा था? जहाँ पे वो मोनू के साथ बैठ के बातें कर रहा था। जिस पार्ट में हम अपने फ्रेंड्स, गेस्ट के साथ बैठ के बातें करते हैं, उसी घर के पार्ट में हम अपना ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। Why do you think Chotu invited Monu to live with him in the pipe? Chotu invited Monu to live with him because Monu had no place to live and Chotu also needed a friend. मोनू के पास कोई घर नहीं था, वो मुंबई में नया आया था, इसीलिए छोटू ने मोनू को अपने साथ रहने के लिए बुलाया। क्योंकि छोटू also needed a friend and मोनू needed a house. Why do we need a house? House protects us from heat, rain, cold, animals and thieves. हमें घर की ज़रूरत क्यों होती है? घर ही हमें बचाता है गर्मी, बारिश, ठंडी, जंगली जानवर और चोरों से। That is the reason we need a house. Now draw a picture of your house in your notebook and color it. Who all live with you in your house? आपके घर में आपके साथ कौन कौन रहता है? My grandfather, grandmother, father, mother and elder sister live with me in my house. Chotu divided the pipe into different parts. Write the names of the different parts of your house. आपके घर में भी जो आपके घर के अलग अलग पार्ट्स हैं, उनके नेम्स आपको यहाँ पर लिखने हैं। लिविंग रूम, बेडरूम, किचन, बाथरूम, स्टडी रूम, गेस्ट रूम एंड वरांडा। ये तो हुई घर के अलग अलग पार्ट्स की बातें। क्या घर भी अलग अलग तरीक़ों के होते हैं? लेट्स स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ हाउसेस। मेनली 2 टाइप के हाउस होते हैं, कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस। एंड लाइक यू कैन सी सम हाउसेस लाइक दिस, इट इज़ कॉल्ड हट। इस तरह के घर को बोलते हैं हाउस बोट। जो घर पानी के ऊपर बना होता है उसे कहते हैं हाउस बोट। जो घर लकड़ी के टुकड़ों से बना होता है उसे हम कहते हैं टिम्बर हाउस और वुडन हाउस।
जो घर बर्फ़ का बना होता है उसे हम कहते हैं इग्लू। उसी तरह से अपार्टमेंट्स जहाँ बहुत सारे फ्लैट्स होते हैं और डबल स्टोरी बिल्डिंग्स, बंगलोज, हाउस, टेंट हाउस, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स. So these are different types of houses. Now, how much time in a day do you spend in each part of your house? आप अपने घर के किस पार्ट में कितना टाइम स्पेंड करते हैं? लिविंग रूम almost 2 to 3 hours, bedroom almost 7 to 8 hours, kitchen half an hour and bathroom half an hour. Is there any part of your house where a particular member of your family spends more time? जैसे हमारी मम्मी जो है किचन में सबसे ज़्यादा टाइम बिताती है. Yes, my mother spends most of her time in kitchen to cook tasty food for us. Is there any part of your house where a particular family member never goes or goes for a short time? घर का ऐसा कोई पार्ट है जहाँ पे घर का कोई मेंबर सिर्फ कम टाइम के लिए ही जाता है या कभी जाता ही नहीं है. Yes, my father goes to the kitchen for a short time. Now, you must have seen that some animals also live with us in our houses. आपने ये तो देखा होगा कि हमारे घर में हमारी फैमिली मेम्बर्स के अलावा भी कुछ एनिमल्स भी रहते हैं. एक तो होते हैं आवर पेट्स जो हमारे घर में हम लाते हैं और वो हमारे साथ ही रहते हैं, और दूसरे होते हैं अनइनवाइटेड एनिमल्स जिनको हम घर में आने के लिए बोलते तो नहीं हैं, फिर भी वो हमारे घर में आ जाते हैं. Some of these animals live with us because we want them to, while some are there uninvited. तो हमारे पेट्स कौन से हुए? डॉग, कैट. अनइनवाइटेड एनिमल्स लिजर्ड, मॉस्किटो, स्पाइडर, कॉकरोच एक्सेट्रा. ये सब होते हैं अनइनवाइटेड एनिमल्स जो बिन बुलाई हमारे घर में रहते हैं. Students, further we will continue in next video. Thank you.